क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे पहले यूनिवर्सिटीज कौन से थे? और वो भी कोई 100-150 साल नहीं, बल्कि तकरीबन 1500 साल पुराने। जी हां दोस्तों, दिस एंशिएंट यूनिवर्सिटीज वर ए पार्ट ऑफ द हाई मिडिल एज हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहां ना ही सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि चाइना, जापान, कोरिया और अन्य सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स अध्ययन करने आया करते थे। हेलो गाइस, मैं हूं राजन और आज हम बात करेंगे अबाउट द हाई मिडिल एज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड विल टॉक अबाउट द टॉप 15 यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। द हाई मिडिल एज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फ्रॉम 5th to 12th सेंचुरी एडी। इतिहास के इस दौर में एक हेटेरोडॉक्स अप्रोच के साथ एजुकेशन सिस्टम में काफी सुधार और बदलाव हुए एंड द एजुकेशन सिस्टम वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बुद्धिज्म। डेवलपमेंट के दौरान काफी सारे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में देश में डेवलप हुए। These universities used to attract students from China, Tibet, Japan, Korea, Greece, Persia and beyond. The mode of education was predominantly Sanskrit and Pali. The key factors which were considered while imparting knowledge were preservation of ancient culture, study of scriptures, character building, development of personality, religious duties, inculcation of spirit towards family and society, discipline and most important, self-dependence. और तकरीबन ये सारी यूनिवर्सिटीज गुरुकुल सिस्टम को फॉलो करती थी। इनमें से काफी यूनिवर्सिटीज तो मंदिरों के अंदर हुआ करते थे जहां पंडित स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, दिस यूनिवर्सिटीज यूज्ड टू इंपैक्ट ए ह्यूज रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच इंक्लूड वेदस, वेदांतस, व्याकरण, आयुर्वेद, सर्जरी, हस्ततंत्र, मिलिट्री एजुकेशन, वेपन ट्रेनिंग, वॉरफेयर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, पॉलिटिक्स एंड मेनी मोर। तो चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन यूनिवर्सिटीज के बारे में। इनमें से पहला यूनिवर्सिटी है नालंदा, जो कि बिहार शरीफ, पटना में सिचुएटेड है, जो उन दिनों मगध के नाम से जाना जाता था। This was one of the best universities of that time, which operated successfully from 5th to 12th century AD. The ancient University of Nalanda obtained significant fame, prestige, and relevance during ancient times and rose to legendary status due to its contribution to the emergence of India as a great power around the 4th century. Today, it is a UNESCO World Heritage Site. Gupta Empire is considered as the founder of Nalanda University. Second is the Takshila or the Takshashila University, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उन दिनों गांधार कहा जाता था। इस यूनिवर्सिटी ने काफी सारे स्कॉलर्स देश को दिए, जैसे कि चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। It lies about 32 kilometers northeast of Islamabad and Rawalpindi. In 1980, Takshila was declared a World UNESCO Heritage Site. Many ancient politicians, rulers and authors studied here. Worth remembering and mentioning are the royal advisor Chanakya and ruler Chandragupta Maurya. Third is the Pushpagiri University. दोस्तों, एजुकेशन के मामले में कभी भी कलिंगा या फिर टुडेस मॉडर्न ओडिशा पीछे नहीं था। उन दिनों पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, जो कि आज कटक में लोकेटेड है, it was successfully operating and is even much older than Nalanda. Fourth is the Vikramasila University. This university is also situated in Bihar. To be more specific, Bhagalpur, जिसे उन दिनों नॉर्थ मगध भी कहा जाता था। It was established by Pala king Dharmapala in 7th century, and unlike others, this university was a cluster of temples and was more inclined towards Hindu rituals. Knowledge was imparted by Prabhus or the Pandits. Fifth university is Shardapit University. This university is located in present-day Kashmir, जो कि पंडितों के द्वारा चलाया जाता था। The mode of communication and the mode of education in this system was Sanskrit. Many famous scholars studied in this temple. Some of them worth remembering are Adi Sankara, Kalhana, and Kumara Jiva. Sharda Pit is one of the 51 Santi Pits as described in mythology. दोस्तों, इन प्रमुख यूनिवर्सिटीज के बाद कुछ और बड़े यूनिवर्सिटीज का नाम भी इतिहास के पन्नों में शामिल है, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो कि इन यूनिवर्सिटीज से छोटे तो नहीं थे, पर लगभग समान स्तर पर ऑपरेट करते थे। सबसे पहले तेलहारा यूनिवर्सिटी, जो कि नालंदा से सिर्फ
40 किलोमीटर दूर बिहार में ही पड़ता है। फिर आता है बल्लभी यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है और जिसे मैत्र के डायनेस्टी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। Then comes Ontapuri University, which is again located at modern day Bihar and was established by Pala king Gopala in 7th century. फिर आता है सोमापुरा यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन पाला डायनेस्टी के राजा धर्मपाला के द्वारा बनाई गई थी, वो भी कहीं और नहीं बल्कि बिहार में ही। देन कम्स विक्रमपुर यूनिवर्सिटी, प्रेजेंट डे बांग्लादेश में मौजूद ये यूनिवर्सिटी 7th सेंचुरी में बनी थी। फिर आता है 8th सेंचुरी में बनी मोरेना गोल्डन ट्रायंगल यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय गुज्जर प्रतिहारस। देन कम्स द कंथलूर साला यूनिवर्सिटी, जो कि आज प्रेजेंट तमिलनाडु में सिचुएटेड है। 9th सेंचुरी में बनी इस यूनिवर्सिटी को नालंदा ऑफ साउथ भी कहा जाता था। फिर आता है जगदल्ला यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी पाला डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी। इसे बनाने वाले राजा थे पाला डायनेस्टी के रामपाल। दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट बंगाल और प्रेजेंट डे बांग्लादेश। देन कम्स नदिया यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी बंगाल में सिचुएटेड है, वो भी गंगा और जलंगी नदी के बीच में, इसलिए इसका नाम नवद्वीप भी था। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला, जो कि माता सीता के पिता राजा जनक की भूमि भी मानी जाती है। मिथिला was famous for its two subjects. One was न्याय or the modern law, and the second was the तर्कशास्त्र और logic. तो दोस्तों, ये थे 15 most ancient universities of our country, और जो प्रदेश एंशिएंट एज में एजुकेशन के मामले में सबसे आगे था वो था बिहार। And the kings who promoted education in our country are चंद्रगुप्त मौर्य and राजा धर्मपाल। पर दोस्तों, हमारे देश के प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया मुस्लिम इन्वेशन के दौरान, और जो सबसे बड़ा नाम इस डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है वो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगले हफ्ते हम बात करेंगे द इंपैक्ट ऑफ मुस्लिम इन्वेशन ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम और द लेट मिडिल एज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नए वीडियो के साथ। Goodbye and take care.